So everybody, we're back with a bang with another video of it. Last class we had something related to the subject-verb agreement. We learnt the rule of proximity. We talked about the words like each, everyone, everybody, someone, somebody, none and one. All those words when they combine together into what? Of course, the subject. जब वो सब्जेक्ट में आते तब क्या करते हैं. उसके अलावा हमने ये भी किया कि जब आपको इधर और दिखता है या इधर नीधर अकेला दिखता है तो आपको कैसे करना है. इवन वी हैड प्रैक्टाइज्ड some of the questions yesterday, and before we move further, let us just examine what we did, right? So following are 2-3 of the questions that I'm gonna put over here. Like the first one comes out to be the behavior of all the students and the teachers dash very rude. Now the blank says seem or seems 1 2, right? So guys, before we move further, we just have to plan it out. The behavior of all the students and the teachers dash very rude. The person here is talking about the word behavior, which is of course the subject 1. Moving forward with the word students comes out to be subject 2 and the teachers comes out to be subject 3. So guys, before we move further, आपको इतना देखना है कि आपके पास 3 subjects हैं. Do we have any and over here or not? अभी कैसे पता लगेगा आपको? ये हमें पता लगेगा इससे. अब ये पर्सन बात कर रहा है कि बिहेवियर से स्टार्ट किया है, इसके बाद आपको एंड नहीं मिला है, विच मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट वर्ड बिहेवियर. अगर वो यहाँ पर बिहेवियर की बात कर रहा है तो इट क्लियरली सेज बिहेवियर वर्ड कम्स आउट टू बी सिंगुलर, तो इट शुड बी इज. If it is, the answer comes out to be way too singular. The answer is seems, which means it says the behavior of all the students and the teachers seems very rude. तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया, राइट? अब एक और चीज़ देखने को यहाँ पता लगती है कि भाई आपके पास सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे दूं, फॉर सपोज मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो, एन ऑब्जेक्ट एंड सम आइटम्स डैश मिसिंग. नो डाउट यू कैन मार्क हेयर है सब्जेक्ट 1 अलॉन्ग विद सब्जेक्ट 2. आप 1 2 मार्क कर सकते हैं, नो डाउट इन इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है जब 1 से आप आगे गए आपको यहाँ पर एंड मिल गया, तो एंड सेज इट कन्वर्ट्स 1 + 1 विच मेक्स इट बोथ. और बोथ का मतलब क्या है? दोनों. दोनों आ रहा है या आ रहे हैं? दोनों आ रहे हैं, विच मीन्स an object and some items are missing comes out to be your answer. Not a difficult thing to do, but yes, you need to be focused into that कि आपको करना कैसे है. Because अगर इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दूँ like this, an object and machine dash missing. This object comes out to be 1, machine is 2. We've got an and, which is of course a conjunction joining the sentences out over here, and this starts a sentence with of course an article and. तो विल जस्ट कंबाइन इट आउट कि भाई 1 के बाद एंड मिल गया, प्लूरल होना चाहिए, बट नहीं, यू नीड टू फाइंड इट आउट कि ये मशीन और ऑब्जेक्ट दोनों सिंगुलर वर्ड्स हैं, प्लस इनको आर्टिकल भी एक मिला है, तो दिस कम्स आउट टू बी सिंगुलर. एन ऑब्जेक्ट एंड मशीन इज मिसिंग. बिकॉज मेयर रूल्स won't make you superior into English. You have to practice those things out regularly. So now nobody does
practice these things at home. Of course, you need a tutor over here. So I'm helping you out to get all those stuff so that you get through into all your exams. So, and for your information, we know that what exams we are talking about. It could be CDS, EPFO, it is AF CAT. We talk about आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके एग्ज़ाम. इसके अलावा आपके पास सी सैट आ जाता है, राइट. इसके अलावा आपके पास और भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, बट ये एग्ज़ाम हमारे ज़्यादा फोकस में रहेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंस एग्ज़ाम मेनली, राइट. सो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में किस चीज़ की बात कर रहे हैं. उसके अकॉर्डेंस में वी गोना डील विद ऑल दोस थिंग्स आउट, राइट. सो इट क्लियरली सेज कि आपको करना कैसे है. तो without wasting much time, let us explore the major parts of it, right. देख लेते हैं एक बार, राइट. तो कल मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था जो हमारा पेंडिंग है, एक्चुअली में पेंडिंग है जो. अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कहता है, हम वो सब देख लेते हैं. गाइज द क्वेश्चन सेज, ये 10th क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, 2 and 2. अच्छा, जिसने नहीं देखी है वीडियो कल की वो प्लीज़ वीडियो वॉच करें. उसमें आपको रूल्स के बारे में, हमारी डेली लैंग्वेज में रूल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ्स कवर्ड इन दैट, राइट. सो इट सेज 2 and 2-4, 2 and 2-4. द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट 2 और ये सब्जेक्ट 2, दोनों सब्जेक्ट्स हैं. एंड से जॉइन है तो इट हैज़ टू बी प्लूरल, द आंसर कम्स आउट टू बी make 4. So this was the question that I gave you yesterday. I hope you had enjoyed it out because आपके छोटे मोटे जो रूल्स पढ़ाए हुए हैं वो इतना काम नहीं आते जितनी आपकी नॉलेज काम आते डीप. So yes, taking it further, we're gonna have these 3 questions covered in exactly 3 minutes. ये इसलिए बोल रहा हूँ because अभी you are into your form, आप कर लेंगे आराम से. There you won't get the options, even you won't get the fill-ups. It would be something like this, or another addition with E as no error, right. तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि कैसे डील करना है इन चीज़ों को, बिकॉज ये इजी होती हैं अगर आप इस वे से देखें, राइट. तो बिफोर वी मूव फर्दर एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे करना है, अकॉर्डिंग किससे करना है आपको. चलो, what we have over here is, it says the cost of all these articles dash risen. The person here is talking about cost of what articles. तो exactly we are talking about the word cost और articles. शायद हम cost की बात कर रहे हैं, right. तो अगर हम cost की बात करें तो it clearly says, आपके सामने it clearly says कि वो कैसे करना है, राइट. तो हम इसको देखेंगे कि एग्जैक्टली में आपको ये डील कैसे करना है, राइट. अब ये देखते हैं हमने कैसे करना है. अब हमको पता लग गया कि पर्सन कॉस्ट की बात कर रहे, तो कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश रिजन. अब पर्सन ने उसकी तो बात कर ली जो कि सही है, लेकिन आंसर थोड़ा मुश्किल आ रहा है, राइट. तो अब इसको कैसे करें वो देखते हैं. इट सेज द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश रिजन. यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ आर्टिकल्स की बात हो रही है. तो हम तो इसको 1-2 मार्क कर लेंगे. वी गॉट अ सब्जेक्ट 1, वी गॉट अ सब्जेक्ट 2, राइट. 1-2 मार्क किया, आर्टिकल्स तक पहुंचे. अब हम देखेंगे डैश गॉन हाई या डैश रिजन. तो एग्जैक्टली में आपके अकॉर्डिंग किसकी बात हो रही है सर, आर्टिकल्स की कि कॉस्ट की. सर हमारे अकॉर्डिंग तो बात कॉस्ट की हो रही है, बिकॉज देयर इज नो एंड इन टू इट. तो वी हैव फॉरवर्डेड आवर रिक्वेस्ट टू द सब्जेक्ट 1. तो 1 पर आ गया, सब्जेक्ट 1 को देखकर इट शुड बी सिंगुलर, द आंसर इज हैज. कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स
हैज़ गॉन हाई। सो बेसिकली हमारा सारा फोकस किस पे आया? द वर्ड कॉस्ट पर। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज डैश इंग्लिश। अब ये क्या? ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स कहाँ पर? हमारे कॉलेज में इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड स्टूडेंट्स ओवर हैर। तो स्टूडेंट्स को देखकर इट शुड बी लर्न, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल सेंस ऑफ द वर्ड्स टिल हैर। Next we have is the quality of the mangoes dash not good. So the person is talking about the word qualities or the mangoes. Of course person qualities की quality की ही बात कर रहा होगा, मैंगोज की तो नहीं कर रहा। चाहो तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो। मैंगोज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्या अच्छी नहीं थी? मैंगोज अच्छी नहीं थी कि क्वालिटी? सर क्वालिटी, तो इट शुड बी वॉज नॉट गुड। कितना सिंपल हुआ ना। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। There you go with the answer. बहुत सिंपल है ये। और ये सिंपल थ्योरी आपको ले जाएगी कि आपको करना कैसे है, राइट? सो वे सो सिंपल थ्योरी, और आपको पता भी लग गया कि आपको करना कैसे है। So right, moving on further. Each of these minerals dash found in India. Each of these minerals dash found in India. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, राइट? इट सेज आपने जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे किया है? सर हमने सेंटेंस तो ईच से स्टार्ट किया है। अगर सेंटेंस ईच से स्टार्ट किया है, सेंटेंस जो है आपने ईच से स्टार्ट किया है, तो ऑफ कोर्स आंसर भी सिंगुलर होगा। तो इट शुड बी इज। टू मेक इट क्लियर, वो वर्ड्स हम थोड़ा सा एक बार ग्रैस्प कर लेते हैं, कौन से वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, बिकॉज दीज आर वे टू इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, नन, वन। ऐसे ही एक समवन और समबडी भी था। तो बेसिकली इतने सारे थे हमारे पास। ये जब भी आपने वर्ड्स देखने हैं गाइस, जब भी ये वर्ड्स देखने हैं आपने, इनके बाद जो वर्ब फॉलो होगा वो हर बार क्या होगा? ऑफ कोर्स सिंगुलर। तो ये वर्ड्स यू नीड टू जस्ट ग्रैस्प दीज आउट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो हमको ये भी देखना है कि इनके अकॉर्डेंस में हम क्या करने वाले हैं, राइट? तो जाकर बहुत ईजी हो जाएगा। फेयर इनफ? तो यहाँ से हमको पता लग गया कि एक्चुअली में कौन से वर्ड्स हैं और कौन से चीज़ों को हमने उसके हिसाब से देखना है, राइट? फेयर इनफ। तो अब ये देखो, इसके लिए इज है आयरन एज वेल एज कोल। तो एक्चुअली में ये आयरन को देखकर आंसर लग जाएगा इज। यहाँ एंड होता तो आर लगता, फिलहाल के लिए क्या लग जाएगा? इज, राइट? तो यहाँ से आपको पता लग गया एग्जैक्टली में पी की लॉजिक क्या है।
रेन डैश फ्रॉम द स्काई, बात किसकी हो रही है? रेन की। रेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफ कोर्स सिंगुलर, तो इट शुड बी फॉल्स फ्रॉम द स्काई। तो यहां पर आंसर क्या आया आपके? फॉल्स हो जाएगा। द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। यहाँ पर आपके पास पोइट है, यहाँ ड्रामेटिस्ट है, बीच में आपके पास एंड है, और स्टार्टिंग में आपके पास आर्टिकल एक होना चाहिए। तो इट शुड बी इज डेड। द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डेड, इट शुड बी इज। क्यों? वही चीज, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, आर्टिकल एक, द आंसर शुड बी इज। नीदर ऑफ द फिल्म्स डैश गुड, बात किसकी हो रही है? एक्चुअली में नीदर की। अगर ऐसा होता नीदर द फिल्म्स नॉर द थिएटर डैश गुड, अभी नीदर नॉर आया तो पास में क्या है? नॉर वाला सब्सटेंस यानी कि थिएटर, तो थिएटर को देखकर क्या लग जाएगा? वॉज। लेकिन यहां नीदर अकेला आया, तो व्हेन नीदर कम्स अलोन, नीदर फॉलोज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यू हैव टू रिमेंबर इट आउट। नीदर फॉलोज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपके पास आ गया। फेयर इनफ। सो द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट देयर, तो बात किसकी हो रही है? एक्चुअली में किंग की हो रही है कि उसके मिनिस्टर्स की हो रही है? सर बात तो किंग की हो रही है, तो किंग को देखकर क्या लग जाएगा? वॉज प्रेजेंट देयर, राइट। So we got these 5 questions, right? So to complete these 5 questions way too quick because ये ज़्यादा important है. So next we have is every man, woman and child in the village dash wounded. I give you exactly 1 minute for this question. Can you just try it out quick? Quick. I need this way too fast.
राइट, क्विक क्विक क्विक. चलो, वी गोना स्टार्ट दिस आउट. एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वूंडेड. अब यहाँ बात किसकी हो रही है? एवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो एवरी इटसेल्फ सेज हर एक, है ना. तो यहाँ पे इमीडिएट साथ में यू गॉट द वर्ड मैन, देन वी हैव वुमेन, देन वी हैव चाइल्ड. डैश वूंडेड, ठीक है, वो वूंडेड की बात कर रहा है, तो इट हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू सिंगुलर. तो द आंसर इज वॉज. एवरी मैन woman and child in the village was wounded. Next we have is rice and curry dash his favorite food. अब देखो गाइस, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले एक बार दोबारा देखते हैं, आपके दिमाग में रह सकता है. एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डैश वूंडेड. अभी आया आपके पास मैन, ये आया आपके पास वुमेन, और ये आया आपके पास चाइल्ड. अब स्टार्ट हमने किससे किया? इनसे. तो इट शुड बी, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एंड आया, तो एंड के बाद तो सेंस प्लूरल का आना चाहिए. एंड के बाद सेंस प्लूरल का आ सकता है, लेकिन यहाँ आ नहीं रहा है. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक्चुअली में पर्सन ने बात करी थी इस चीज़ की. जब सेंटेंस एवरी से स्टार्ट हो गया तो चुपचाप सिंगुलर लगा दो. दैट गोज विद योर आंसर. राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड. इट शुड बी इज हिज फेवरेट फूड. वो क्यों? अरे भाई फूड की बात हो रही है तो वो एक ही डिश मानी जाएगी. तो इट शुड बी इज हिज फेवरेट फूड. इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट डैश एवर लिव्ड. ही ने इज लगा दिया है, अब बारी है ग्रेटेस्ट लीडर्स की. तो इट शुड बी हैव एवर लिव्ड. राइट. A number of students dash caught copying. A number of students dash caught copying. ये किसकी बात हो रही है? अ नंबर की बात हो रही है. ये अ नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड बी प्लूरल. तो आंसर शुड बी वर कॉट कॉपिंग, क्योंकि अ नंबर से स्टार्ट हो रहा है. अगर यही चीज़ द नंबर से स्टार्ट होती तो ये बन जाता सिंगुलर. इट शुड बी वॉज, यानी द नंबर रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड वन. द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज. यहाँ बात किसकी हो रही है? बॉय गर्ल की, दोनों की बात हो रही है. ठीक है, वो सेम कॉलेज में जाते हैं, तो इट क्लियरली सेज कि आंसर क्या आएगा? बहुत आराम से प्लूरल. सो गो वुड बी आवर आंसर. फेयर इनफ. सो आई गेस हमें ये समझ आया है. ऑलराइट, वी आर डन विद दिस पार्ट ओवर देयर. सो आई होप यू गॉट दिस थिंग आउट एंड आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे करना है. उसके अलावा डेफिनेटली वी गोना प्रूव इट आउट कि आप क्या कर सकते हैं. ऑलराइट जी, आई होप these things are clear to you. We're gonna continue these things in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you.